Now, here we have given directly the number, right? Like n is the number. We don't have to calculate n. n क्या है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? It is like 2 raised to 5 into 3 raised to 4 into 5 raised to 3. That's it, right? And we have multiple questions related to this number. But the first question is, what is total number of factors? You pause the video and try by yourself. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, right? वैसे ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना अब हमें आ गया है. दैट इज 2 raised to 5 into 3 raised to 4 into 5 raised to 3. हमें पावर्स में एक एक ऐड करना है. 5 plus 1 into 4 plus 1 into 3 plus 1. This is 6 into 5 into 4. That is 120. Very simple, right? Great. चलिए. So the first answer is 120. I hope you also got this, right? Next one. Find the number of odd and number of even factors. Kindly pause the video and again try by yourself. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, ठीक है? Done. नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर. सर हमें आता है ना, आप 2 को इग्नोर कर दो, जो बचा उसमें से आपको ऑड फैक्टर्स मिलेंगे. That is 3 raised to 4 into 5 raised to 3. Why we ignore 2? Because it's a only even prime number. वही तो सिर्फ even है जो even factors बनाता है, बाकी सब तो और factors से बनाएंगे. ठीक है? So बाकी जो बच गए वो है 3 raised to 4 and 5 raised to 3. So that is 4 plus 1 into 5 plus 1. That is 5 into 6. Total 30 odd factors will be there. 30 odd factors will be there. Total factors हमें पता है 120. So 120 minus 30, that is 90. 90 even factors will be there. That's what the answer is. Very simple. We have already gone through this concept. I hope you understand and got the correct answer. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next example is find the number of prime and number of composite factors. Beautiful example. And I challenge you that both answer. To find both correct answer, it is tricky in this example. Not difficult, tricky. So give a thought, try by yourself. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, right? Find the number of prime and composite factors. Okay. Sir, इसका जो prime factorization तो already दिया हुआ है. That is 2 raised to 5 into 3 raised to 4 into 5 raised to 3. ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूं. अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 raised to 5 is 2, 2 raised to 2 4, 8, then 16 and 32. 3 raised to 4 is 3, 3 का स्क्वायर 9, 27 and 81. 5 raised to 1 is 5, then 25 and 125. Now एक और आएगा, 2 raised to 0 is 1, 3 raised to 0 is 1, 5 raised to 0 is 1. अब इन सारी चीजों को अंदर अंदर अरेंज करके, बात समझो, इन सारी चीजों को अंदर अंदर अरेंज करके आप नए फैक्टर्स बना सकते हो. यू कैन मेक न्यू फैक्टर्स. सो टोटल फैक्टर्स जो आपको 120 मिलते हैं, दिस 120 फैक्टर्स विल बी दीज नंबर्स एंड इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. फेयर इनफ. इन सारे नंबर्स में से प्राइम कौन सा है? सर 2, 3 and 5. इसके अलावा कौन सा प्राइम आएगा? ये है, इस पे कोई प्राइम सर दिख रहा है ना, उनके पावर से मतलब प्राइम नहीं हो सकते. ठीक है, अच्छा इनके प्रोडक्ट से कोई प्राइम नंबर बनेगा? सर कैसा सवाल है ये? अगर आप किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो बनने वाला नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता. समझ रहे हो ना? बिकॉज prime number has only two factors, one and itself. If you product something, let's take an example. Let's say 2 into 3, 2 into 3, that is 6. यार ये 6 प्राइम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी के प्रोडक्ट से बन रहा है ना. 6 will have 3 and 2 as their factor because it is the product ultimately. ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट से बनने वाले कोई नंबर प्राइम नहीं हो सकते. सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि ये 120 फैक्टर में से सिर्फ 3 नंबर 2, 3 and 5 are only prime numbers. Exactly yes. Did you get this? Exactly yes. सिर्फ 3 नंबर प्राइम होंगे, 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. सर इसका मतलब क्या हुआ?
120 नंबर में से 3 नंबर प्राइम यानी 117 नंबर कॉम्पोजाइट होंगे, हाँ या ना बताओ, यस और नो, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? यस ऑफ कोर्स, या नंबर प्राइम होगा या कॉम्पोजाइट होगा। 120 में से अगर 3 नंबर प्राइम है तो बाकी के सारे नंबर कॉम्पोजाइट। सर गलत, why? You tell me. What do you think? Why it is wrong? I'll tell you. Right? सबसे पहले बात को समझे that 2, 3 and 5 are prime numbers, लेकिन composite numbers फाइंड करने के लिए मैंने 120 minus 4 किया। सर क्यों? 3 नंबर है ना प्राइम, तो 4 क्यों सबट्रैक्ट किए? This is the reason I gave you the challenge that it is the tricky part. Right? I'll tell you why. देखिए, why this 4 यहां आएगा, ठीक है। Why this 4? Because why 4 and not 3? आप बताओ, why 4 and not 3? Because as 1 is neither prime nor composite. अलाइनमेंट में इश्यू है, so it is neither prime nor composite. हमेशा याद रखना ये, ठीक है। डन। 1 क्या है? ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजाइट है, तो आप ना इसको प्राइम में गिन सकते हो ना कॉम्पोजाइट में। मतलब क्या हुआ? टोटल 120 केसेस में से 116 कॉम्पोजाइट फैक्टर्स, 3 प्राइम फैक्टर्स एंड 1 नाइदर केस। This is the way your 120 factors are bifurcated. Am I clear? Yes. Did you get this exact answer? If yes, excellent. Very good. चलिए, done. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Done? ठीक है। The next part of the question is find the number of factors which are multiples of 5. Sir, ये तो बड़ा सोचना पड़ेगा। टाइम दे रहा हूं मैं आपको। Please pause the video and try by yourself. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। सर मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब क्या हुआ? आप देखें, मैं आपको ना थोड़ा टेक्निकली समझाता हूं, ताकि जब रूट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चंस आता है किसी एग्जाम में, तो आपका रूट कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इक्वेशन तो है, n इज इक्वल्स टू दिस। इक्वेशन क्या है? सर जो पावर है उसमें +1 +1 +1 करके इनको मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो इक्वेशन क्यों है वो मैंने आपको समझाया। एग्जैक्टली द वे ये जो फैक्टर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो इन नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 5 का अगर मैं सोचूं, सो 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. These are different possibilities with 2, ठीक है। 3 raised to 0, 3 raised to 1, 2, 3 and 4, 5 raised to 0, 1, 2 and 3. We have these many numbers to deal with and to make factors. Now what I need is multiple of 5. समझ रहे हो? Multiple of 5 इसका मतलब क्या हुआ? आप इसके साथ 5 के साथ जितने भी प्रोडक्ट करो वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे। 5 के साथ जितनी भी प्रोडक्ट करो वो मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे ना। मतलब लेट्स से दिस नंबर मल्टीप्लाइड विद दिस, सॉरी दिस नंबर मल्टीप्लाई विद दिस, 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 दिस एंड दिस, ठीक है, गिविंग यू 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स। दिस नंबर मल्टीप्लाइड विथ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स प्लस 6, ठीक है। दिस नंबर मल्टीप्लाइड विद दिस, चलेगा ये? ऑफ कोर्स यस, राइट। मल्टीप्लाइड विद दिस, देन दिस एंड दिस, अगेन 3 नंबर्स। बात समझ रहे हो? 5 raised to 1 लेना जरूरी है। That's it, done. Now अब अगर मैं 5 raised to 2 की बात करूं तो 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, सो अगेन 5 + 6, लेकिन उसको मैंने ऑलरेडी इससे तो मल्टीप्लाई कर लिया 5 raised to 1 से, तो हम किससे देखेंगे? इससे। सो इसे और इसे, दैट इज 2। सो ऐसे आप नंबर्स ढूंढ सकते हो। दिस इज अ टेक्निकल मेथड टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड। लेकिन थोड़ा फास्टर प्रोसेस अगर इसको करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बात समझे। नाउ कैन आई सिंपली से दैट 5 raised to 3, 5 raised to 3 ऑलरेडी दिया है और मुझे सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 चाहिए, यानी 5 होना कंपलसरी है मेरे फैक्टर्स में, 5 होना कंपलसरी है। इसका मतलब अगर मैं 5 को इग्नोर कर दूं
2^5 and 3^4. मैंने 5 को इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो क्या बचा 2^5 into 3^4. इससे बनने वाले फैक्टर्स कितने होंगे? 5 + 1 into 4 + 1, that is 6 into 5, that is 30. टोटल 30 फैक्टर्स विल बी देयर जो इससे बनेंगे, ठीक है, डन. अच्छा, बाकी के सारे फैक्टर्स जो बनेंगे, बाकी के सारे फैक्टर्स जो बनेंगे, that will be having 5 in this, because 30 फैक्टर्स आर सच जिसमें 5 नहीं होगा, ठीक है. जो 5 होगा वैसे कितने फैक्टर्स होंगे? टोटल 120, उसमें से 30 माइनस कर दो, that is 90, ठीक है, डन. So your answer is 90. What I did the other way round. मुझे 5 वाले ही चाहिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, 5 को भूल गया. मैंने सिर्फ 5 बिना के ढूंढे, राइट, डन, ओके. चलिए, तो let's see the next part. Okay, find the number of factors which are perfect squares and perfect cubes. Find the number of factors which are perfect square and perfect cubes. ठीक है, we are going through very good concept which are related to factors. Very good concepts of factors. ठीक है, try this, try by yourself. Pause the video. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, let's try this. Find number of factors which are perfect square and perfect cubes. ठीक है, perfect square and perfect cubes. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2^5 है, ठीक है, तो मैं 2^5 में मैं 2^1 अगर यूज करता हूं तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बने ना बने, लेकिन अगर मैं 2^2 यूज करूंगा तो ऑलरेडी ये परफेक्ट स्क्वायर लिया ना मैंने. बात समझो. और इफ आई से इन अनदर लैंग्वेज, थोड़ा और आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, तो क्या अगर मैं ऐसा कह सकता हूं 2, 3 और 5 से बनने वाले फैक्टर्स का पता नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे कि नहीं, लेकिन 4, 9 और 25 से बनने वाले नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. 4 खुद परफेक्ट स्क्वायर, 9 खुद परफेक्ट स्क्वायर, 25 खुद परफेक्ट स्क्वायर. इनकी जो प्रोडक्ट्स होगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, सीधी बात है. 9 into 4 36 परफेक्ट स्क्वायर, 25 into 9 that is 225 परफेक्ट स्क्वायर. सीधी बात है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. डन, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, instead of taking 2, 3 and 5, what if we take 4, 9 and 25, right? So can I write 2 power 5 as 2 into 2 power 2 into 2 power 2 into 2 power 1? Yes, that is 4 power 2 into 2 power 1. मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है फिलहाल. While making perfect square मुझे चाहिए 4, so I got 4 power 2 from here. ठीक है, डन. वैसे इसके साथ डील करते हैं. 3^4. Can I write 3 square into 3 square? Yes, that is 9 power 2. Yes, so I got 9 power 2 from here. ठीक है. Then 5 cube, that is 5 square into 5 power 1 or 5 square. So that's it, right? So I can simply write 25 power 1 into 5. इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे. I'll simply write 25 power 1. Now, as because I wanted to make perfect squares, I took 4, 9 and 25, which are perfect squares. So, what did I have? What do I have now? 4 square into 9 square into 5 power 1. Now, can you make factors out of this? Sir, yes, factors बनाना तो हमें पक्का आता है. पावर में एक ऐड कर दो. 2 plus 1, 2 plus 1, 1 plus 1, that is 3 into 3 into 2, that is 18. Do you get this? 18 factors will be there which will be perfect squares, because those are made out of perfect squares, right? You see here, that's what I have done. What did I take? 4 square, 9 square and 25 power 1. I have taken this and I have written this. That's what I showed you. ठीक है, done. Now if we talk about cubes, perfect cubes, perfect square का जिसका आंसर नहीं आया था या गलत आया था, वो perfect cube का आंसर इस मेथड से फिर से ढूंढ सकते हो.
जो हमने स्क्वायर्स में लगाया वही, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, लेकिन वही मेथड लगाना होगा. ट्राई दिस. आई एम गिविंग यू टाइम, पॉज द वीडियो. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, राइट? तो कैन आई से दैट सर इसके लिए क्यूब्स बनाने होंगे. 2⁵ इंटू 2⁵2. इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई हैव 2⁵3. ठीक है. 3⁵3 इंटू 3⁵1. इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई हैव 3⁵3. ठीक है. एंड 5⁵3. डन. तो ये क्या हो गया? 8, 27, 125. 8 पावर 1, 27 पावर 1, 125 पावर 1. ये फैक्टर्स और इससे बनने वाले फैक्टर्स सारे परफेक्ट क्यूब्स होंगे, बिकॉज दीज आर परफेक्ट क्यूब्स. फेयर इनफ. इसका मतलब +1 +1 +1 2 into 2 into 2, that is total 8 factors will be there such that all of them, 8 of them would be perfect cubes. Would be perfect cubes. ठीक है? Yes? Done? ठीक है, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, find the number of factors which unit digit as 0. हाँ, सोचो. ऊपर वाले में जैसे थोड़ा बहुत सोचा है ना, इसमें भी सोचो. चलिए, आई एम गिविंग यू टाइम. पॉज द वीडियो एंड ट्राई. चलिए, आपने ट्राई किया होगा. लेट्स गो थ्रू दिस. अच्छा, यूनिक डिजिट 0 का मतलब क्या हुआ? कोई फैक्टर्स है, ब्ला 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 ब्ला, पीछे आएगा 0. ब्ला ब्ला की जगह अगर मैं कोई एग्जैक्ट एग्जांपल लिखूं, 1 2 3 1 2 4 0. अच्छा, यूनिट डिजिट 0 आने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? यूनिट डिजिट 0 आने का क्या मतलब है? दैट इज उसमें 10 उसका मल्टीप्लीकेशन में होगा अल्टीमेटली. सो यूनिट डिजिट 0 मतलब, इफ आई एक्सप्लेन इट हियर, ध्यान से देखें. लेट्स से इफ आई राइट दैट 236 into 10 power 1, this will be 2360. This will be 2360. इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 0. मतलब जिसमें 10 का एक पावर भी होगा, 10 का एक पावर भी, मिनिमम 1 से ज्यादा फिर डेफिनेटली 0 होंगे, लेकिन 10 का एक पावर भी होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0. अंडरस्टूड? यही लॉजिक अगर आपने भी लगाया है, दैट्स ग्रेट. ठीक है. तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, I need to focus on powers of 10 out of this. Now, how do you focus on powers of 10? यहां पे 2 का एक पावर और 5 का एक पावर मैं ले लूं तो वो हो जाएगा powers of 10. To make 10, what I need? I need 5 and 2. Only 1. 1 5 and 1 2. You can make 1 10. That means you just forget about this and you think that I need compulsory 2 power 1 and 5 power 1. उतना तो मुझे निकाल ही लेना है, वो हर बार चाहिए मुझे. That I put every time. समझ रहे हो ना बात को? वो उसको मैं हर बार साथ में रखूंगा. ठीक है, डन. तो मान लो कि अगर आप एक पिज्जा बना रहे हो, ठीक है, यू आर मेकिंग अ पिज्जा और मल्टीपल पिज्जास. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? कैप्सिकम ले लेते हैं. कैप्सिकम आप साइड में कर देते हो पहले. ठीक है, जब पूरा पिज्जा मशीन में बनता है, तो उसमें क्या होता है? किसी में कैप्सिकम आता है, किसी में नहीं आता है, किसी में कम आता है, किसी में ज्यादा आता है. नो, व्हाट डू नीड इज कैप्सिकम इन ईच पिज्जा, कैप्सिकम इन ईच पिज्जा. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा? कैप्सिकम को ही साइड में ले लेता हूं कि भाई तू कैप्सिकम बिना के सारे पिज्जा बना ले, फिर सब में मैं कैप्सिकम डाल दूंगा. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. मैं क्या कर रहा हूं? 10 को पहले साइड में ले लेता हूं, फिर जितने फैक्टर्स बनेंगे उन सब में 10 डाल दूंगा. सीधी बात है. तो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 0. ठीक है, so for unit digit 0 factors will be multiples of 10, that is 2 power 1 5 power 1 is compulsory. So keeping that out what we have is this, right? क्यों क्या किया मैंने? देखो, 2 पावर 5 में से एक 2 को निकाल के 2 पावर 4 कर दिया. 5 पावर 3 में से एक 2 को निकाल के 5 पावर 2 कर दिया. क्यों? 2 और एक 5, 10 को अलग कर दिया मैंने. टोटल 75 फैक्टर्स बने. 10 को अलग करने के बाद टोटल 75 फैक्टर्स बने. अब ये गलती मत करना कि सर 10 डाल दो 750 हो गए. भाई टोटली 120 फैक्टर्स है. डोंट थिंक लाइक दैट, राइट? सो we actually don't have to put 10 here while we ignore keeping out. जब हम 10 को साइड में रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो 10 को हम इन सारे फैक्टर्स में कंसिडर कर लिए.
वो 10 को हमने इस सारे फैक्टर्स में कंसिडर कर लिया. सो नाउ पिज्जा मेकिंग प्रोसेस. मैं डिश ही अंदर कैप्सिकम डाल के डाल रहा हूं ना. मैं सारी डिश जो पिज्जा बनाने के लिए अंदर जा रही है उन सब में पहले से ही कैप्सिकम है. ठीक है, तो पहले से ही कैप्सिकम डालने के लिए आई हैव टू रिमूव कैप्सिकम फर्स्ट एंड देन पुट इट. सो मैंने यहां पे कैप्सिकम को रिमूव कर लिया पहले. ठीक है, सारी डिश में डाल दिया. बाकी बचे जितने पिज्जा है वो कैसे बनेंगे? कैप्सिकम के अलावा. दैट इज टोटल 75. I hope you understood, right? So for unit digit 0, what you need is 2 and 5. That's what we have done here, right? Chaliye, let's go with the next part. So the next part that we have is sum of all factors, right? We have seen how do we find number of factors by prime factorization method. Once we do prime factorization and then we do certain, we apply certain equations and we find number of factors. But how about sum of factors? Sirf ek without equation or without any concept, we just try to find it manually. What if I ask you that what is sum of all factors of 24? So first we need to find the factors of 24. That is 1. This is the way we find 24. 2, 12, 3, 8, 4, 6. इन सबका एडिशन 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 12 plus 24. Whatever it is, ये हमें फाइंड करना है. बट अगर ये 24 की जगह मैंने 120 पूछ लिया या 240 पूछ लिया या 620 पूछ लिया, the manual process becomes too long and it is impractical, right? So what we need to do is we need to apply certain conditions. That is, कैसे कर सकते हैं हम इसको? ध्यान से देखें. If a number is prime factorized in this way, है ना, हमने number of factors भी इसी से ढूंढा था. तो sum of factors का एक simple formula है is this. You see, A, B and C, A, B and C are the prime factors. P plus 1, Q plus 1, R plus 1, in which P, Q and R are powers of those prime factors, right? Upon A minus 1, B minus 1, C minus 1. दिखने में खतरनाक लगने वाला इक्वेशन हमें बड़ा सिंपल तरीके से आंसर दे देता है. That what will be sum of any fact, what will be sum of any numbers factors. देखते हैं हम लोग कैसे, right? Let's try to apply this over 24. ठीक है, again 24 can be prime factorized as 8 into 3, where 8 is 2 power 3, 3 is 3 power 1. यही चीज मैं ऊपर अप्लाई करके देखता हूं. ध्यान से देखे, हमारा A क्या है यहां पे 2, B क्या है हमारा 3, what is P, A का जो पावर है वो that is 3, and what is Q, जो B का पावर है वो 1. Fair enough. अब ये चीज C तो है नहीं हमारे केस में, तो हमें फोकस करना है इस पे. This is the thing that we need to focus. Let's try to apply it. ठीक है, ध्यान से देखें. A raised to P plus 1, 2 raised to P plus 1, that is 4, 3 plus 1, 4, minus 1 upon A minus 1, that is 2 minus 1, into B raised to Q plus 1, that is 3 raised to Q, 1, 1 plus 1, 2, minus 1 upon Q, B minus 1, B is 3, 3 minus 1. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 2 raised to 4, 16, 16 minus 1, 15 upon 1 into 9 minus 1, 8, 8 upon 2. For solving this, we get 60. अब ये तो चेक करना पड़ेगा ये सही है कि नहीं है. ठीक है, so 15 fours are 60. 60 is the sum of factors of 24. 60 is sum of factors of 24. But let's see, is this correct? ये रहा 60 तो ठीक है, हमने ढूंढ लिया यही इक्वेशन अप्लाई करके. लेकिन हम देखते हैं क्या ये सही है. जैसे ये रहे हमारे सारे फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. ये क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग. उन सब का एडिशन इज अगेन 60. दैट मींस द इक्वेशन इज करेक्ट. ऑफ कोर्स सर, राइट. ठीक है, सो किसी भी नंबर के फैक्टर्स की बात हो रही है और उसमें भी उसके सम ऑफ फैक्टर्स की बात हो रही है, यू विल हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन to find any numbers sum of factors. Before that you will have to prime factorize that number and you will easily able to find. ठीक है, चलिए. I hope you understood this. Let's try another one. Find the sum of factors of 60. It's your turn now, right? Pause the video and apply that equation. Try by yourself.
चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा अपनी तरह से. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60. ठीक है, वी आर आल्सो गिवन ऑप्शंस. सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर्स ढूंढना है, ये समझ लेते हैं पहले तो. ठीक है, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज सम ऑफ फैक्टर्स. इसका मतलब क्या हुआ, वी नीड टू फोकस ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट. So 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन would be 2 raised to 2 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1. ये ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए अब. ठीक है, so this is the prime factorization you might have got. Now after looking at prime factorization, if I say that ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, so this is my a equals to 2 and p equals to also 2, b is equals to 3 whereas q is equals to 1, c is equals to 5 whereas r is equals to 1. Now putting these values into this formulas directly gives you answer. कोई बड़ी बात है ही नहीं. ठीक है, so a raised to p plus 1, that is 2 raised to 3 minus 1 upon 2 minus 1 into b is your 3 raised to 2 minus 1 upon 3 minus 1 and c is 5 raised to 2 minus 1 upon 5 minus 1. Now solving this gives us 7 upon 1 into 8 upon 2 into 24 upon 4. So what do you get here? 2 4s are 4 4 gets cancelled. 24 into 7, that's what you get. 24 into 7. 24 into 7 would be 168. It would be 168. So this is your answer. Did you get this? Yes, that's great. ठीक है, चलिए. So there I have applied also and I have written your answer as well. चलिए, I hope you got your answer correct. ठीक है, let's go to the next part. Product of all the factors, number of factors, sum of factors. Now we are getting into the product of factors. Product of factors, वैसे product of factors आप सोच भी सकते हो. वैसे मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है. Let's say this is the number with the way it is prime factorized. Already हम बहुत बार ये कर चुके हैं. ठीक है, then product of factors will be n equals to f by 2. x is equals to n raised to f by 2. पहले तो ये प्रोडक्ट है अपना, x is our product. ठीक है, what is n and what is f? n is number of factors, f is number of factors, right? What is n? n is our number itself. f is number of factors whereas n is our number itself. बात को एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग. ठीक है, छोटा सा ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें समझ आए. ठीक है, अगेन 24 गुड एग्जाम्पल. ठीक है, सो यहां पे हमारा नंबर क्या है 24, मतलब आंसर आएगा 24 के पावर में कुछ. डन. यहां पे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो पहले ढूंढने पड़ेंगे ना. नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपको पता ही है कैसे ढूंढते हैं. इन दोनों ही पावर्स में प्लस वन कर दो और मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट इज 3 plus 1 into 1 plus 1, that is 4 into 2, that is 8. This is our number of factors. So इस फॉर्मूला के हिसाब से 8 by 2, so 24 raised to 4 should be our answer. That will be product of all the factors of 24. That will be product of all the factors. Sir, how do we cross check this? I'll show you. ध्यान से देखें. This is number of factors and this is our answer according to the formula as just we discussed. Right. Now let's see all the factors of 24. That is 1 and 24. That is 1 and 24, 2 and 12, 3 and 8 and 4 and 6. Right. Now 1 24. Product क्या होगा इसका 24. 2 12. Sorry. Product क्या होगा 2 into 12 24. This is 1 into 24 24. 3 8 again 3 into 8 फिर से क्या होगा 24. 4 6 क्या होगा 4 into 6 24. 4 times you are getting 24. Definitely your answer is right. 24 raised to 4. Cross checking, a clear cross checking, right? So what we need to understand here now, till this point what we have seen is prime factorization method. Say after we get the result of prime factorization method, what are the different things we are getting? Number of factors, sum of factors, product of factors. All the formulas we have seen, all the examples we have seen related to it. Okay, so this is about product of factors. The same thing, let's say the same thing
This is the same thing that we have to apply over any another number, right? Let's try another number, let's say. ठीक है, let's try 36. Let's try 36. ठीक है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, वो हम समझ रहे हैं यहां पे. ठीक है, what is 36? 36 के फैक्टर्स कौन से होंगे, या फिर मैं आपको बोलूं कि 36 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ढूंढो. What will be product of factors of 36? Kindly pause the video and try to solve by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. समवेयर आपने देखा कि सर पहले तो हमने 36 को प्राइम फैक्टराइज किया. वेरी गुड. कैसे किया सर? 2 into 3 दिस इज द थिंग दैट वी हैव रिसीव्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 36. ठीक है, नाउ इसी को मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढा सर. नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके लिए इन दोनों में एक एक ऐड करना पड़ेगा. 2 + 1 into 2 + 1 दैट इज 3 into 3 दैट इज 9. अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगाया सर. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला इज नंबर रेज टू f/2 दैट इज दिस. ठीक है, सो दिस इज 36 रेज टू 9/2. यार ये तो गलत हो गया, कैसे करें? 9/2 को कैसे सॉल्व करें? व्हाट इज दिस? 36 रेज टू 4.5. सर इसका आंसर कैसे लेके आए? डिड यू गेट स्टक हियर? ठीक है, हम समझते हैं. ये चीज याद रखो, फॉर्मूला से हमारा आया आंसर 36 रेज टू 4.5. कीप दिस एज इट इज, राइट? लेट्स कीप इट इन माइंड. मैं यहां लिख देता हूं, बाय फॉर्मूला वी गॉट 36 रेज टू 4.5. डन. ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल लेवल पे ढूंढने चलता हूं. 36 1 36 2 18 3 12 4 9 6 doesn't make any pair because 6 6s are 36. You see 1 2 3 4 9 12 18 36 makes pair but not 6. Hence the number of factors here are 8 + 1 9. ठीक है, हमारा फोकस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ढूंढना. ठीक है, तो पहला ये प्रोडक्ट आ गया सर. 36 एक बार, 2 into 18 36 दो बार, 3 into 12 36 तीसरी बार, 4 into 9 36 चौथी बार, into 6. This is my product of factors. So ideally looking, can I say it is 36 raised to 4 into 6 raised to 1. This is my answer. Definitely. सर ये वही है ना, मतलब अब ध्यान से देखें. 36 रेज टू 4.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 36 रेज टू 4 इंटू 36 रेज टू 0.5. यस सर, कॉमन बेस, एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स. परफेक्ट. सो 36 रेज टू 4 तो यहां पे भी है. 6 रेज टू 1 इज बेसिकली 36 रेज टू 0.5. कैसे सर? 0.5 इज 1/2. That is root of 36. That is 6. So 36 raised to 4 into 6. This is the way you should get your answer. So when you use formula, you will be getting this when there are no odd number of factors, right? The way it was in 36. I hope you understood this. Let's go to the next part. What is a multiple? A is a multiple of B when if there exists any natural number n such that B into n is equals to A. क्या कह रहे हो सर? डेफिनेशन तो सर क्या क्या डेफिनेशंस बुक्स में दी होती है, कहीं कहीं दी होती है. सिंपल बात समझते हैं हम लोग, और सिंपल टर्म्स, टेबल ऑफ एनी नेचुरल नंबर टिल इंफिनिटी आर मल्टीपल्स ऑफ n. कितना सिंपल है ये, थोड़ा ज्यादा ही सिंपल हो गया, राइट? टेबल ऑफ एनी नेचुरल नंबर. मान लो मैं बात कर रहा हूं 6 की. 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे सर? 6 का टेबल कहां से स्टार्ट होता है? 6 का टेबल 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 and so on. Let's say 6 10s are 60. बस सर इतने मल्टीपल है, क्योंकि टेबल तो 10 तक ही होता है. राइट, जस्ट किडिंग. ये 10 तक नहीं होता बेटा, वो हम 10 तक पढ़ते हैं. एक्चुअली इट गोज टिल इंफिनिटी, right? Actually it goes to infinity. Into 11 66, into 12 72 and so on. So this goes to infinity. किसी भी नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल्स जो इंफिनिटी तक जाएंगे, वो इन सारे नंबर्स को हम कहेंगे 6 के मल्टीपल्स. Very simple, right? ठीक है. So the same example I have taken here.
लेट्स से 6 का, ठीक है। नाउ 6 के मल्टीपल्स की जो बात हो रही है उसके हिसाब से मैंने यहां पे भी कुछ नोट्स बनाए हैं। दैट इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। फैक्टर्स में भी स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा था? 1। मल्टीपल्स में स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है? नंबर इटसेल्फ। क्योंकि अगर मैं 6 की बात करता हूं तो उसका सबसे पहला मल्टीपल इंटू 1 होगा ना, तो वो खुद ही आएगा। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6। हेंस स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर विल बी नंबर इटसेल्फ। बड़ा सिंपल है समझना। नेक्स्ट, हाईएस्ट मल्टीपल किसी का क्या होगा? सर 10 6 are 60s। नहीं, एज जस्ट वी डिस्कस्ड इट विल बी इंफिनिटी। वो इंफिनिटी तक जाएगा ना, कितना भी बड़ा हो जाए, राइट? ठीक है। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट ऑन द लास्ट नोट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट व्हिच वी कैन नॉट काउंट। ठीक है ना। अगर फैक्टर्स की बात हो रही थी, 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6, 1 2 3 4, मैं गिन सकता हूं, आई कैन काउंट। बट हाउ अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 6? 6 1s are 6, 6 2s are 12। कहां तक गिनूंगा? टिल इंफिनिटी गिन नहीं सकता मैं। हेंस इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। सो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स आप नहीं गिन सकते, फैक्टर्स गिन सकते हो। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होगा, हालांकि सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। ठीक है। सो दीज आर फ्यू नोट्स रिलेटेड टू मल्टीपल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक्स। मल्टीपल क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? आज हमने जो सीखा वो क्या था? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, राइट? ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की ओरिजिनल एप्लीकेशंस। पहले उससे हम निकालेंगे HCF LCM एंड देन इन्हीं की एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ HCF मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, दैट इज HCF एंड LCM। ठीक है। दैट विल लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट।